Assalamu alaikum. My today's lecture is linked with my previous lecture, and in this series we are covering our maximum words that we are learning through the root word method. In root word method, we have covered the one root word which was feed, and previously we have discussed that feed was based on trust and faith. So now I come up with a new lecture and which is based on lock, LOC and LOQ. The lock word basically based on speak and talk. And sorry, I just want to clear something. Like, I got the one suggestion that I must continue my lecture in Urdu so that the maximum viewers can understand my lecture. Those who are beginner and who are just trying to learn the words through root word, so maybe it could be impossible, and it could be hard for some viewers to understand the complete lecture in English. So I will try to speak in Urdu and I will try to make you understand in Urdu. So I was saying, like, जहाँ पे भी हम LOC और LOQ वर्ड को देखेंगे किसी भी वर्ड में, तो वो लिंक करेगा डायरेक्टली स्पीक से या टॉक से. So basically lock word is directly linked with the speak and talk. So in our first word, loquacious, so we can clearly see here it's a LOQ, loquacious. So जहाँ पे भी LOQ आ गया तो हम डायरेक्टली समझ जाएंगे वो बात हो रही है किसी भी टॉक या स्पीक से रिलेटेड. So loquacious, loquacious is talkative, the person who speak a lot. So loquacious, and the second one is eloquent. So LOQ is also present here. So it means it also, the word also linked with the speak clearly. Eloquent are those person who speak very clear, who are very well in expressing something. So eloquent, we can say that there are many motivational speaker who are very eloquent in their speech. So why they are very eloquent? Because they speak very clear and their ideas are very clear. So that's why they are very eloquent. So we can say, हम उस पर्सन को भी कह सकते हैं वो eloquent है because वो अपनी बात को बिल्कुल clearly convey कर रहा है अपने मैसेज को. And the third one is somniloquent. यहाँ पे भी हम LOQ देख रहे हैं. अगर ये हमारे एग्जाम में वर्ड आ जाता है तो हम डायरेक्टली LOQ के इस रूट वर्ड से LOC या LOQ को, जब हम अपने किसी भी वर्ड को एग्जाम में देखते हैं और उसमें हम LOQ देखते हैं तो हम समझ जाएंगे ये किसी बोलने की या किसी डायलॉग की बात हो रही है. तो सोमनीलोक्वेंट को सोमनीलोक्वेंट का मतलब है टॉकिंग व्हाइल अस्लीप. अच्छा, ये कैसे याद होगा आप? So here is the word somni. Somni is somni words directly convey the message of sleeping. Like somni का मतलब ही क्या है? सोना. ठीक है, सोमनी. और लोक का मतलब है बात करना, बोलना. सोमनीलोक्वेंट वो लोग होते हैं जो सोते हुए बात करते हैं. समटाइम्स people usually speak while they are sleeping. So these are the people who are somniloquent. I hope you got it. And the fourth one is magniloquent. अच्छा, मैग्नी का मतलब तो हम सबको पता है, मैग्नीफाई करना किसी चीज़ को. मैग्नीफाई ग्लास हम यूज़ करते हैं, क्यों? बिकॉज दे एक्सप्लेन द थिंग्स मोर क्लियरली. सो मैग्नीलोक्वेंट आर दोज वो एग्जैजुरेट द थिंग्स एंड द टॉक. ओके, सो ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि ये मैग्नी है. मैग्नी का मतलब ही बढ़ा चढ़ा कर जो लोग बात को बताते हैं. सो दे आर मैग्नीलोक्वेंट. एंड द फिफ्थ वन वाज ब्लेंडीलोक्वेंट. ब्लेंडी. अच्छा, यहाँ पे लॉक भी आ गया है और ब्लेंडी का मतलब होता है किसी को फ्लैटर करना, किसी को शुगर कोटेड वर्ड्स बोलना, किसी की चापलूसी करना या किसी से अपनी बात मनवाने के लिए उसे शुगर कोटेड वर्ड्स में बात करना. सो दीज आर द पीपल हु आर ब्लेंडीलोक्वेंट. अगर कोई किसी से अपनी बात मनवाने के लिए शुगर कोटेड वर्ड्स बोलता है तो उस बंदे को हम क्या बोलेंगे? सो व्हाट ही इज ब्लेंडीलोक्वेंट. ओके, द सिक्स्थ वन वर्ड इज मेलिलोक्वेंट.
मेलिलोक्वेंट, मेली का मतलब होता है मीठा मीठा बोलना, सॉरी मेली का मतलब होता है स्वीट, मीठा। एंड लोक, लोक जब ये वर्ड आ गया, सो इट डायरेक्टली conveys the message that these persons are those who speak very sweet. So melloquent. So now here the question arises, what is the difference between the blendiloquent and melloquent? Because both the meanings, both words are saying the same meaning, like sugar coated and speaking sweet. So what is the basic difference between the blendiloquent and melloquent? So the main difference is blendiloquent are the person who are flattering, जो चापलूसी के लिए बोल रहे हैं, but the melloquent are those person who have the habit of speaking sweet. Means they are naturally sweet in the words, so they have the sweet voice. But the melloquent हम they are not naturally, हम बनते हैं blendiloquent में, but melloquent में हम naturally ही हमारी voice sweet है, हम मीठा बोलते हैं. And the seventh word is circumlocution. Okay, so here is LOC. अच्छा, हमने यहाँ पे देखा था LOC हो या LOQ हो, बहुत लोग का मतलब है बात करना. अच्छा, अब circumlocution का मतलब है इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग. इसको कैसे याद करेंगे हम? सर्कम लोकेशन को, सर्कम को आप याद कर लें सर्कल से. सर्कल क्या होता है? ऐसे राउंड होता है, ठीक है. और सर्कम भी आगे सर्कल से याद करेंगे, और लोग का तो वैसे ही मतलब बोलना होता है, तो हम इसको याद करेंगे कि वो लोग जो घुमा फिरा कर बात करते हैं. सर्कम लोकेशन आर दोज who are not talking in the direct way. They always use the method of indirect way of conversation. So circumlocution are those who speak in indirect way. So I hope you are clearing that point, that circumlocution, सर्कल से, सर्कम को सर्कल से याद करेंगे आप, और लोक को याद करेंगे आप बोलने से. Got it? And the eighth word is soliloquy. अच्छा, soliloquy are the person who speak to oneself. I mean, बहुत से लोग होते हैं जो खुद से बात करते हैं, they are soliloquy. अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट है that I want to clear here. एक वर्ड है, ये तो हमने अभी पढ़ा है ना, soliloquy. इसका मैंने अभी बताया आपको, द पर्सन हु स्पीक इन अलोन एंड बाय वन सेल्फ. सो एक और वर्ड है यहाँ पे, मोनोलॉग, और एक वर्ड है डायलॉग. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री वर्ड्स? सोलिलोक्वे वो जो खुद से बात करते हैं, मोनोलोक्वे वो वर्ड है, वो लोग हैं जो जिनमें एक बंदा बात कर रहा हो. और डायलॉग में हम क्या करते हैं, दो डायलॉग होता है दो पर्सन के दरमियान में. अच्छा, अब बेसिक डिफरेंस जो समझने वाला है, सोलिलोक्वे में वो लोग होते हैं जो खुद से बात करते हैं, उसमें कोई दो बंदे नहीं होते. लेकिन मोनोलॉग में ये होता है कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई एक जो है वो बोल रहा है. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम क्लास में एग्जांपल लेते हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद होते हैं, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक टीचर होता है, वो इज़ अलोन इन स्पीकिंग. सो दैट कन्वर्सेशन इज कॉल्ड मोनोलॉग वे. एंड द डायलॉग इज बेस्ड ऑन द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू पर्सन. डायलॉग में दो लोगों के दरमियान बात हो रही होती है, मोनोलॉग में बहुत सारे लोग मौजूद हैं लेकिन एक बोल रहा है. लेकिन सोलिलोग पे तो वो लोग हैं जो खुद से बात करते हैं अकेले में.